students, let's continue with admission of partner, page number 161, practical problem, sum number 1. Vikram and Pradnya share profits and losses in the ratio 2:3. Their balance sheet is on 31st of March 2018 was as under. Balance sheet on 31st of March 2018 is given to you. They agreed to admit Avni as a partner. So Vikram, Pradnya, Avni, Vikram, Pradnya, Avni, Vikram, Pradnya, Avni. Okay. So further it is given that Avni shall have 1/4 of share in the profit. She should bring capital and goodwill, land and building, tick mark, furniture, tick mark, and provision for bad debt means status, tick mark, stock, tick mark. Okay. Now, the capital account of all partners to be adjusted in the new profit sharing ratio and excess amount to be transferred to the loan account. Now what is today's problem and what are we going to understand? Today's problem is a very important type of problem, because when the paper is set, when the question paper is set by the teacher, then if this topic is asked, then always teacher goes for a difficult question, because this topic is a very simple. When we talk about the simple problems what we have done before, those problems were very simple. But when you look at this problem, this is also a simple problem, but there is a new thing, a new logic, a new concept what we are going to understand in this problem. So this is a basic one, but the basic will remain very important, because if you understand the basic, then we can go for the hard or the difficult problems. So let's begin with this problem. First of all, whenever you solve an admission question, you have to remember the mantra is अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. Asset, liability, capital, cash, reserve, capital. अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. That is asset. So land and building is an asset. So I'll write in the asset. Land and building, that is 37,500. Next is plant is an asset. No adjustment on plant. So I'll write plant in the second column, 45,000. The next is furniture. Furniture is 3,000. The next is stock. Stock is 75,000. The next is debtors. Debtors is 87,000. The next is liability, that is creditors. Creditors is no adjustment on creditors, 1,05,000. Next is cash. To balance brought down, cash balance. To balance is 7,500 in cash. Next is capital. Buy balance brought down. विक्रम का बैलेंस है 75,000. प्रज्ञा का बैलेंस है 75,000. ए का बैलेंस नहीं दिया हुआ है. That means I have completed the postings of balance sheet. That is अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमकाता. रिजर्व नहीं दिया हुआ है. ओके, तो asset, liability, capital, cash, reserve is not given. So let us begin with the adjustment number 1. Adjustment number 1 is they agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018 on the following term. The first term is Avni shall bring 1/4 of share in the future profit. Avni shall bring 1/4 of share, shall have 1/4 of share in the future profit. मतलब वो न्यू रेशियो के लिए 1/4 ऑफ शेयर दिया हुआ रहता है. आगे चलते हैं, कभी यूज नहीं करते हम लोग, इस सम में यूज करने वाले हैं. एडजस्टमेंट नंबर 2, she shall bring होना चाहिए. She shall bring 37,500 as capital. क्वेश्चन जरा ओपन करो, उसके बाद ही वीडियो देखो तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है. She shall bring 37,500 as capital. तो उसने कैपिटल लाई, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने लाई? अवनी ने लाई. अवनी कैपिटल 37,500. कैश तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू अवनी 37,500. अवनी तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय कैश 37,500. एनी प्रॉब्स? नो प्रॉब्स. आगे चलते हैं.
एंड 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, एज हर शेयर ऑफ गुडविल उसने 30,000 गुडविल का लाई, तो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उसने गुडविल लाई, कितना लाई 30,000, 30,000 कैश, कैश तेरे डेबिट में क्या लिखूं, टू गुडविल 30,000, गुडविल, गुडविल तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं, बाय कैश कितना 30,000। अरे बराबर, जैसा गुडविल आएगा, जैसा गुडविल आएगा ओल्ड पार्टनर खाएगा, जैसा गुडविल आएगा ओल्ड पार्टनर खाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, विक्रम टू प्रज्ञा, कौन से रेशियो में खाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा, कितना है 2:3, तो 30,000 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 12,000 और 18,000, तुम लोग डिवाइड करके देखो, गुडविल, गुडविल तेरे डेबिट में क्या लिखो, 2 विक्रम, 2 प्रज्ञा, 12,000, 18,000, कौनो तकलीफ नहीं, तकलीफ। आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर इज 3, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000, टू बी वैल्यूड एट 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो जाएगा 45,000, बढ़ जाएगा, इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन, क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन, क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन। कितना एप्रिसिएशन होएगा, 7,500, डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,500, कौनो तकलीफ नहीं, तकलीफ। आगे एडजस्टमेंट नंबर 2 इज फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, सो फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, लेस depreciation at the rate 10%, that is 300, depreciation का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 300, ओके। एडजस्टमेंट नंबर इज 5, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, सो डेटर्स पे लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, सो आरडीडी लिख देता हूँ ना, 5% कितना आएगा, 10% आएगा 8,700, 5% आएगा 2 4 8, 2 3 6 5 0 4350, 2 RDD 4350, 4350। आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर इज 6, स्टॉक वैल्यूड एट 82,500, स्टॉक का वैल्यू हो गया 82,500, क्या हुआ रहेगा, एड एप्रिसिएशन, कितना हुआ रहेगा एप्रिसिएशन 7,500, बराबर ना, यहाँ पे बाय स्टॉक 7,500, अरे बराबर, अरे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, मतलब बेसिक प्रॉब्लम इज ओवर, 6 एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, अभी लास्ट का रीड करना है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो and the excess amount to be transferred to their loan account। बस ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया क्या, मतलब सम पूरा कंप्लीट हो गया है, ये सम ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। अब क्या सीख रहे हैं, जो पार्टनर्स का कैपिटल है ना, जब नया बिजनेस बन रहा है ना, मतलब एक बार फिर से समझ लेते हैं, ग्राहम और ग्लेन, देयर आर 2 पार्टनर्स एंड शाहिद सर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, ओके। तो Graham and Glenn had some capital in their business. Graham and Glenn had some reserves in their business, had some profits, they had made some profits. But when Shahid sir will come, then what will happen? They will start fresh. उनको ऐसा लगेगा कि पहले हम लोग सब हमारा हिस्सा ले लेते हैं, When Shahid sir will come, तो हम लोग तीनों का बिजनेस जो है नई तरीके से चालू करेंगे, बराबर ना, सिंपल है। तो ग्रैहम और ग्लेन क्या बोलेंगे मालूम है क्या, मुझे क्या बोलेंगे की शाहिद सर नेक्स्ट इयर पासून आपण काय करणार, आपण आहे ना आपला कॅपिटल आहे ना हे फिक्स करणार आपल्या रेशो अनुसार, म्हणजे इफ माय रेशो इज 3, सॉरी ग्रैहम रेशो इज 3, ग्लेन रेशो इज 2 एंड शाहिद सर रेशो इज 1, मतलब ग्रैहम का रेशो 3 है, नया रेशो 3 है, ग्लेन का 2 है और शाहिद सर का 1 है, तो ग्रैहम क्या बोलेगा, सर तुम्ही 1 लाख रुपया बिझनेस मध्ये टाका, ग्लेन तू 2 लाख टाक आणि मी 3 लाख टाकतो, म्हणजे 3 लाख 2 लाख आणि 1 लाख कॅपिटल
हे आपले रेशो प्रमाणे पाहिजे. न्यू रेशो के हिसाब से हमारा कैपिटल एडजस्ट होना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन का लॉजिक है. जब विक्रम, प्रज्ञा और अवनी तीनों पार्टनर्स जब नया बिजनेस चालू करेंगे तो विक्रम, प्रज्ञा और अवनी ये बात करेंगे कि हमारा जो नया रेशो आएगा ना, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा, उसके हिसाब से हम लोग कैपिटल लाएंगे. एक हिस्सा है तो एक कैपिटल, दो हिस्सा है तो दो कैपिटल, तीन हिस्सा है तो तीन कैपिटल, चार हिस्सा है तो चार कैपिटल, पांच हिस्सा है तो पांच कैपिटल. होप यू अंडरस्टैंड. तुम लोग बोलेंगे नहीं समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आ रहा है तो इधर एक साइड में वर्किंग नोट करके देता हूं और वो वर्किंग नोट को परफेक्टली स्टडी करो, आराम से देखो, तो ऑटोमेटिकली लॉजिक क्लियर हो जाएगा. ओके, फिर उसके बाद इफेक्ट क्या आएगा वो बताता हूं. पहले वर्किंग नोट देखते हैं. चलो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट एंड देन न्यू कैपिटल. व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू कैपिटल. New profit sharing ratio, new capital. Already in my previous lectures, I have taught you how to calculate new profit sharing ratio. But once again, let us try to understand. To calculate new profit sharing ratio, we are supposed to calculate the balance. Avni is admitted for 1/4 of share. So first we are supposed to calculate balance. How to get the balance? 1 minus 1/4, that is equal to 3/4. Hope you understand. 4 में से एक हिस्सा अवनी का, 4 में से 3 हिस्सा बाकी के पार्टनर्स का, 4 में से एक हिस्सा अवनी का, तो 4 में से 3 हिस्से बाकी के पार्टनर्स के. तुम लोग बोलेंगे सर नहीं, हमको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आ रहा है तो 1/1 minus 1/4, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. 4 से मल्टीप्लाई करो into 4 into 4, तो 4 minus 1 3, डिनोमिनेटर इज सेम, सो 4 दैट इज 3/4. अरे बराबर ना. न्यू रेशियो के लिए कौन कौन है भाई? विक्रम है, प्रज्ञा है और अवनी है. विक्रम का रेशियो क्या है? 2:3 था ना, तो 2/5. प्रज्ञा का 3/5. 2/5, 3/5. विक्रम का और प्रज्ञा का ओल्ड रेशियो मालूम है 2:3, मतलब 2/5, 3/5 इनटू बैलेंस. बैलेंस कितना है? 3/4, 3/4. चलो 2 3s are 6, 5 4s are 20, 3 3s are 9, 5 4s are 20. So I have got this new ratio 6/20, 9/20. 6/20, 9/20. अवनी का ऑलरेडी नया रेशियो दिया हुआ है. अवनी का ऑलरेडी नया रेशियो दिया है 1/4. क्या दिया है? 1/4. इसको 20 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5. So I will get 5/20. I will get 5/20. So I have got the new ratio of Vikram, Prajna and Avni, that is 6, 9, 5. So I'll write new ratio of VPA is 6:9:5. Now how to get the new capital? नया कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे जरा देखना. अभी नया कैपिटल फाइंड करने के लिए ना टेक्स्ट बुक में कॉलेज के टीचर्स बहुत सारे मेथड्स बताएंगे. है टेक्स्ट बुक में मेथड्स है, बट मेरा मेथड एकदम रियलिस्टिक, एकदम प्रैक्टिकल मेथड है. जरा ध्यान देना बॉस. देखो, न्यू रेशियो एक ऐसा टेबल बनाएंगे. VPA इसका 6, इसका 9, इसका 5. ओके, सो न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे? न्यू कैपिटल देखो मस्त मेथड है. VPA विक्रम, प्रज्ञा और अवनी में नया कैपिटल किसने लाया है? अवनी ने लाया है. क्योंकि नया पार्टनर तो अवनी है ना, तो नया कैपिटल किसने लाया है? अवनी ने. कितना लाया अवनी ने कैपिटल? अवनी ब्रॉट 37,500 एज कैपिटल. 37,500. अगर 5 हिस्से के लिए, 5 शेयर के लिए इसने 37,500 लाया है, तो 9 के लिए कितना? 6 के लिए कितना? वंस अगेन, 5 शेयर के लिए इसने 37,500 कैपिटल लाया है, तो 9 के लिए कितना? 6 के लिए कितना? वंस अगेन, 5 शेयर के लिए इसने 37,500 लाया है, तो 9 के लिए कितना? 6 के लिए कितना? अब तुम लोग बोलेंगे सो
एक बार एक्सप्लेन करो ना, ये देखो एक्सप्लेन करता हूँ। 5 के लिए 37,500, 5 के लिए 37,500, तो 6 के लिए कितना, 6 के लिए कितना कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 into 37,500 डिवाइड बाय 5, 6 into 37,500 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 जा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 6 0 0 6 5 जा 30, 0 3 6 7 42, 45,000, कितना 45,000। सिमिलरली इसका करते हैं, 5 के लिए 37,500, तो 9 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 into 37,500 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 7,500 जा, so 9 0 जा 0, 0 9 4 9 9 7 जा 54, 54 once again 9 0 0 9 0 0 9 5 45, 4 carry 9 7 जा 63, 67,500, 45 and 37,500 is the new capital, is the new capital। ये कॉपी कर लो वर्किंग, मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ। Now after getting the new capital, now what we are going to understand is how to close the books of accounts। अब नया कैपिटल कहाँ पे आएगा, ये हमारा नया बैलेंस शीट है, इसमें कैपिटल लिखूंगा मैं, कैपिटल विक्रम प्रज्ञा अवनी, विक्रम का 45,000, प्रज्ञा का 67,500 और अवनी का 37,500। अरे बराबर है, क्लियर है, टोटल कैपिटल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट, ये क्रेडिट कहाँ से आया, कैपिटल अकाउंट से आया, डेबिट टू बैलेंस कैरीड डाउन 45,000, 67,500 और 37,500। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तीन पहले कैसा करते थे हम लोग, ये बंद करते थे और कैपिटल यहां लेके जाते थे, ये बंद करते थे, बैलेंस निकालते थे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस निकालते थे और वहां लेके जाते थे। अब ये सब उल्टा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने नया कैपिटल निकाल दिया, वर्किंग नोट याद कर, वर्किंग नया कैपिटल निकाल दिया, क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट। नॉर्मली क्या करते थे, डेबिट तो क्रेडिट, डेबिट तो क्रेडिट, बट अभी उल्टा कर रहे हैं, बराबर है, क्लियर हो गया। अभी अकाउंट बंद करते हैं, पहला अकाउंट बंद करेंगे, पहला अकाउंट बंद करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, फिर कैपिटल बंद करेंगे और फिर बैलेंस शीट बंद कर देंगे। ओके, टोटल इज 15,000, टोटल इज 15,000, 15,000 minus 4650, 4650 is 10,350, 10,350 to partners capital विक्रम प्रज्ञा, कौन सा रेशियो, कौन सा रेशियो, 2:3, आंसर 2:3 में डिवाइड करो, 4140 6210 आएगा। यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 4140 6210। अरे बराबर है, क्लियर है। अब तुम लोग बोलेंगे सर अब तो कैपिटल अकाउंट बंद कर ही नहीं सकते हैं, कैपिटल अकाउंट बंद करके बैलेंस जो आता है वो तो ऑलरेडी आ गया है, बट नहीं, क्वेश्चन चेक करो, कैपिटल अकाउंट बंद करके कहां पे बैलेंस डालना है वो दिया रहेगा, कैपिटल अकाउंट बंद करके कहां पे बैलेंस डालना है वो दिया रहेगा, कैपिटल अकाउंट बंद करके कहां पे बैलेंस डालना है दिया रहेगा, और अगर नहीं दिया है कि कहां पे बैलेंस डालना है तो कैश में से जाएगा, कहां से जाएगा, कैश से जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट बंद करके एक्सेस जो आया वो कहां पे डालना है नहीं दिया है तो कैश से जाएगा, अगर दिया है तो वहां पे जाएगा। देखो ना क्वेश्चन में दिया रहेगा, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस amount to be transferred to their loan account and excess amount to be transferred to their loan account, excess amount to be transferred to their loan account। अरे समझ में आ रहा है, लोन अकाउंट से जाएगा। तो पहला ये बंद करते हैं, 79,140, 79,140, अरे बराबर ना, माइनस करो तो आएगा 79 minus 45 is 34,410, बराबर
सिमिलरली इसको 1 करो 81,210 माइनस करेंगे तो आएगा 81 माइनस 67,500 81,210 माइनस 67,500 इधर आएगा 13,710 और इधर टैली हो जाएगा 37,500 अरे बराबर ये डैश ये कहाँ पे जाएगा लोन अकाउंट यहाँ पे आई हैव नॉट रिटर्न गुडविल बैलेंस कैश बैंक प्रॉफिट एंड लॉस ये ट्रांसफर हो गया गुडविल का एंट्री नहीं मारा था मैंने गुडविल अकाउंट डेबिट ये किया वी और पी तरह क्रेडिट बाय गुडविल का एंट्री नहीं मारा है दैट इज 12,000 and 18,000 okay automatically this number will change 79 plus 10 89 91,140 91,140 91,140 okay minus 45 is 46,140 okay here total will be 75 plus 6 is 81 99,210 and this is how much 67,500 99 minus 67,500 500 is 31,710 okay debit credit loan Vikram Pradnya 46,140 and 31,710 okay this will tally cash bank को ट्रांसफर कर सकते हैं टोटल 75 क्रेडिट तो 75 डेबिट तो कैश बैंक भी आ जाएगा दैट मींस योर टोटल विल टैली